তারালি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দুদিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে সারা রাত্রব্যাপী ১৬ দলীয় ক্রিকেট খেলার শুভ সূচনায় ১১২ বিএনবিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি কমান্ডার জেসি পান্থ। আজ ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর গতকাল অর্থাৎ প্রথম দিনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উদ্যোগীরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ১১২ বিএনবিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার মিস্টার জেসি পান্থ, সাথে ছিলেন অন্য আরও এক আধিকারিক মিস্টার দলবীর। পুরস্কার প্রদানের আগে আগত অতিথিদেরকে উদ্যোগীরা ব্যাজ উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। এই সম্বর্ধনা প্রদানের শেষে সারা রাত্রব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা করেন বিএসএফের আধিকারিক। খেলার সূচনার মুহূর্তে আগত খেলোয়াড়দের সাথে পরিচয় বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আগত দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে স্থানীয়দের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে কি বললেন শুনুন সরাসরি তার মুখ থেকে। আপনারা দেখছেন সেই বিশেষ মুহূর্তের ধারণকৃত ভিডিও চিত্র আজকের স্বরূপনগরের ক্যামেরায়। চলছে সম্বর্ধনা পর্ব, তারপরেই পুরস্কার প্রদান এবং সবশেষে সারা রাত্রব্যাপী ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ সূচনায় ১১২ বিএনবিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি কমান্ডার জেসি পান্থ। দেখতে আমাদের সাথে থাকুন, চোখ রাখুন। আমাদের রাশেক বরণ করে নিচ্ছেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। হাততালি সবাই। হ্যালো, সবাই হাততালি দেবেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ১১২ নাগা ব্যাটালিয়নের কাছে। দীর্ঘ ৫ বছর ওনারা এখানে আছেন, ৪ বছর আমাদের এই ক্লাবের যতগুলো প্রতিযোগিতা হয়েছে সেই প্রতিযোগিতায় ১১২ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত সমস্ত অফিসাররা আমাদের সহযোগিতা করেছেন বা আমাদের মধ্যে থেকেছেন। এবার একে একে যে সমস্ত বাচ্চারা আজকের এই যে মাস র্যালিতে ছিল, এর কিতাব ওনার সৃষ্টি করা বিতারি হাকিমপুর অঞ্চলে উনি সৃষ্টি করেছেন। আজকে অনেক ছেলেপিলেরা, অনেক মেয়েরাও পর্যন্ত আজ অংশগ্রহণ করতে পারছে। আর একটা কথা আমাদের কমান্ড্যান্ট সাহেব বলেছিলেন, আমাদের বলেও গেছেন, যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা যদি কেউ বিএসএফে চাকরি করতে চায়, মেয়ে হোক ছেলে হোক, তারা আমাদের এই যে এখানে আমাদের সেকেন্ড ইন কমান্ড জেসি পান্থ সাহেব আছেন, তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারবেন। অবশ্যই তাদের বয়স হওয়ার দরকার, 18 সালের উপরে বয়স হওয়ার দরকার। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস হতে হবে। গাজী সহ সম্পাদক। এবার আমাদের আনিসুদ্দিন গাজী মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী সালাম সর্দার, এরপরে আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী সালাম সর্দার, তাকে বরণ করে নিচ্ছেন জাহাঙ্গীর সর্দার। সম্পাদক ইমরান গাজী। এই দিকটা দেখো। সম্পাদককে, এই ক্যাপ্টেনকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। তারালি সীমান্ত ক্লাব। গ্রুপ সি লাভ। এইটা ভিতরে দেবে। গ্রুপ সি বালিকা
এই ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে সারা রাত্র ব্যাপী যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে, ফার্স্ট প্রাইজের ট্রফি, সেকেন্ড প্রাইজেরও ট্রফি, ফার্স্ট প্রাইজের ট্রফি এবং সেকেন্ড প্রাইজেরও ট্রফি, এই দুই ট্রফি ছাড়াও অন্যান্য ট্রফিও 112 নাগা ব্যাটালিয়ন বিএসএফ তাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে ডোনেট করা হচ্ছে। এটা আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাই হাততালি দিয়ে বিএসএফকে सारे जहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान रही हमारा सारे जहाँ से अच्छा हमारा बॉर्डर का बीएसएफ जाए ऐसा बीएसएफ होना चाहिए। पीछे 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 चले সদস্য যারা স্টেজে আছে তারা নেক্সট সোয়ানগাইন সেকেন্ড, আরিয়ান ডালি থার্ড। তিনজন চলে এসো ডাইজের এখানে। राइक क्लास सर मैथ राउंड क्या प्राइस है सर? मैथ राउंड फर्स्ट राइक क्लास गाजी, सेकंड सोहन गाजी, सोहन गाइन, থার্ড আরিয়ান ঢালি। পরের অঙ্কদর বালিকা, পরের অঙ্কদর বালিকা সোনাম গাজী। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ফোর্থ, নতুন ফোর্থ, গুড। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো করে পড়াশোনা করবে। সবার সবার এই হাততালি দাও, ওদের হাততালি দাও তোমরা। হ্যাঁ স্কুলে এক রোল স্কুলে ফার্স্ট হয়েছো, আরে গুড, एग्जाम में फर्स्ट हुआ। हाथों 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 কোন জায়গায় বাড়ি? তারালি উত্তরপাড়া ইসারুল কাদি। গুড, যাও। তারপরে কে? ইমরান। আগে হাতালি 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 হাততালি। এ উপপ্রধান है तो कम से कम। থার্ড সোহেল মন্ডল। হাততালি দাও, হাততালি। পরের চোখ বেঁধে হাঁটা, ব্লাইন্ড রেস। और आँख बंद करके हाथा, हाँ आँख बंद। सोहेल मंडल था। अरे जब तो बहुत पुरस्कार मिला ना। फास्ट कौन? হ্যাঁ 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 फास्ट सेकंड के সাকিব গাজী। थर्ड সোহেল মন্ডল। सोहेल मंडल। ओके जाओ हातताली सबाई। বস্তা দৌড়, এবার বস্তা দৌড়। বস্তা দৌড়। 16 দলীয় যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হবে, উদ্বোধন করছেন আমাদের 112 নাগা ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার। তিনি ব্যাটিং করবেন আর ইন্সপেক্টর জি 112। नहीं 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 नहीं, इधर तो तारली का हुई है ना। यही क्लब सेक्रेटरी सब 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 लीडर। अच्छा छोटा बॉल, टोटल 6 बॉल आप करेगा, टोटल 6 बॉल। थैंक यू। इस बार भी सबको आउट करेगा तो गुड गुड है आपको। सारे दर्शक, सबसे
सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं BSF यानी सीमा सुरक्षा बल तो सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। 112 बटालियन यहाँ पे है, लगभग 5वां साल यहाँ पे चल रहा है 112 बटालियन का। जब से हमारी यूनिट यहाँ पे आई है हमने हर तरह से प्रयास किया है कि जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना आए। और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी हम जितनी सहायता कर सकें उतनी हम प्रयास करते हैं। और जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उसके अंदर आप लोगों के सबके सहयोग से हमने भी यहाँ पे हर बार प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे गांव वालों का काफ़ी सहयोग मिलता है। और उसी तरीके का यहाँ पे था जब हमारे को मालूम चला कि भाई युवाओं के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम है, तो हमारे VCO साहब ने बोला कि इसके अंदर एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट करना है। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो यहाँ की BSF यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके साथ में हमेशा तत्पर रहती है। हमारी सिर्फ जो है यहाँ पे जो छोटी मोटी जो स्मगलिंग वाला जो है हम सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट में हैं, अदरवाइज जो गांव वाले हैं उन्हीं की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे हैं। और आप लोगों का सबका सहयोग हम चाहते हैं। और जहाँ तक युवाओं का है तो उसी के लिए अलग अलग तरह की हमने स्कीम चलाई थी, पहले भी किया था और अभी नए साल से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी है इसके अंदर कि हमने एक नया स्टेप लिया है कि जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उसके अंदर ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी एज ऐसी है और जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा, जिन्होंने कम से कम 10th पास की है और जिनकी शारीरिक योग्यता ऐसी है जो सरकारी नौकरी के अंदर जा सकते हैं या फोर्स में जा सकते हैं, सीमा सुरक्षा बल में जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने भी लोग थे, उप प्रधान था, इनसे सबसे रिक्वेस्ट की थी कि भी हमारे को सारे जो मेंबर थे उससे किया था कि भाई आपके गांव के अंदर ऐसे लोग जो इस क्राइटेरिया के अंदर फिट होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भर्ती होने के लिए, सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके अंदर एज लिमिट है 19 से 23 साल का। और जो जनरल कैटेगरी के लिए है ये 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। तो जो उसके अंदर फिट होते हैं ऐसे लोगों की लिस्ट हमारे को दें ताकि उनका सिलेक्शन करके अभी उनकी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। उस ट्रेनिंग के अंदर जो बेसिकली जो उसके अंदर पेपर के अंदर आता है उसमें रिटन और फिजिकल, तो फिजिकल के अंदर उनकी हम तैयारी करवाएंगे ताकि वो उस क्राइटेरिया में फिट हो सके। और उसके साथ साथ जो रिटन टेस्ट आता है तो रिटन के अंदर बेसिकली उसके अंदर GK आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, तो और जो लैंग्वेज का पेपर है उसकी हम इस तरीके से तैयारी करवाएंगे कि जो एक नया लड़का होगा उससे इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो जिनसे मैं मिला हूँ उनको भी मैंने बताया है कि हम आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, उसके बाद के अंदर मेहनत आपकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो हमारे पास में आकर के 4 दिन क्लास अटेंड करेगा वो पास हो जाएगा। पेपर के अंदर कैसा पेपर आएगा हम एक वो बता सकते हैं कि भाई ये सैम्पल पेपर इस टाइप का होता है और इसकी हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा वो उसके अंदर मेहनत करेगा उसके चांसेस सेलेक्ट होने के उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो यहाँ पे है, क्योंकि जितना भी आपका होता है फ्रंटियर मतलब कि एक्सट्रीम एरिया ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री का जो सबसे बाहर का है, तो जो सबसे लास्ट का एंड होता है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है। उसके अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट कम होगा वहाँ पे थोड़ी शिक्षा की, रोज़गार की थोड़ी समस्याएं आती है। तो जो लोग हैं अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं है, तो उनके भटकने के ज़्यादा चांस रहते हैं, वो दूसरे चीज़ों के अंदर सम्मिलित होने लग जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ का जो यूथ है वो एनर्जेटिक रहे और देश की सुरक्षा या देश के जो
वृद्धि है, समृद्धि है, उसके अंदर अपना योगदान दें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं हम चाहते हैं कि भी उनका सहयोग हमारे को मिले। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा यहाँ पे है। और एक बार फिर बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जो पूरे गांव वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 112 बटालियन की तरफ से आपके पूरे सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिर्फ आपसे हम सहयोग की आशा करते हैं। हमारी जो आम लोग हैं उनके साथ में कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग छोटे मोटे क्राइम के अंदर शामिल हैं, जो दूसरे नहीं शामिल हैं, वो भी उन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करें ताकि वो भी उस चीज़ से बाहर निकलें। क्राइम की जो एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो कहीं न कहीं पकड़ में आता है। तो गांव की बदनामी होती है, आप लोगों की बदनामी होती है। अगर 10 आदमियों के बीच में से अगर 2 कोई क्राइम करता है तो बाकी के 8 जो होते हैं उनकी तरफ उनको भी संदेह की नज़रों से देखा जाता है। तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं। और बाकी जहाँ तक 112 बटालियन का सवाल है और सीमा सुरक्षा बल का सवाल है, हम सीमाओं पे हमेशा डटे हुए हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितनी है सीमाओं की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है और हमारे को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। विश्वास दिलाते हैं हमारी जिम्मेदारी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।